हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आज मैं आपके साथ उत्तराखंड के स्टेट फेस्टिवल हरेला रिलेटेड कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी जो हमारे स्कूल पे मनाया गया था। तो पूरे 1 वीक तक हमने हरेला वीक सेलिब्रेट करा और उसके शुरुआत हमने किए थे स्पीच कंपटीशन के थ्रू। तो सबसे पहले आइए हमारे स्कूल पे जो स्पीच कंपटीशन के ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। I feel honored to stand before you all to speak about Harela, a unique festival that is celebrated in Indian state of Uttarakhand. Harela which means a day of green. कि हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। Good morning to everyone present here. I am Nimakshi Negi from class 10th A and today I am presented here to give a speech on the occasion of Harela. Harela, a festival deeply rooted in the culture and traditions of Uttarakhand. It is particularly celebrated in Kumaon region. Harela meaning day of greenery or greenery. And today I feel honored to stand before you to speak on a topic that concerns each and every one of us, the environment. Environment is not just the world around us, it's our home, our responsibility and our future. Arrival of monsoon season and a promise for a good harvest. It's a time for greenery, prosperity and environmental consciousness. Start for the agriculture cycle for the people of Uttarakhand, especially those involved in farming. Harela is a very important festival. It's a time when we show seeds, hoping for a good harvest in the coming month. The festival एक अत्यंत महत्वपूर्ण व सुंदर त्यौहार है। हरेला पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरेले का शब्दार्थ करते हैं हरियाली का दिन। यह पर्व विशेष रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में Every man's need, but not every man's greed. We face several environmental problems like climate change. It's not a future threat, but a present reality. Oceans are choking with plastic. The air polluted is silently killing millions every year. The forests are vanishing at an alarming rate. We say we want development, but what kind of development destroys its own infrastructure? We cannot call us advanced if our rivers are dry, our air is polluted, and our 5 to 7 types of grains such as wheat, maize, barley and mustard in small pots and baskets filled with soil. They water them every day and by the 10th day, these grains grow into the beautiful green shoots called harela. These freshly green shoots are cut and then placed in the heads of the family members on the 10th day as a blessing for good health, prosperity and protection from evil. And later on, elders bless the younger ones and these shoots are also kept on vehicles. तो ये था हमारे स्कूल के स्पीच कंपटीशन के कुछ क्लिप्सेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हरेला वीक एक्चुअली हमने सेलिब्रेशन करना शुरू किए थे 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई हमने स्पीच कंपटीशन रखे, फिर 17 को छुट्टी रहा क्योंकि ये स्टेट फेस्टिवल है। देन ऑन द 18th हम जाके ये जो हरेला ट्री प्लांटेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन किए थे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उस दिन हम बच्चों को बताए थे कि आप हाउस वाइज जो ड्रेस है आपके वो पहन के आएंगे और बच्चे अपने अपने हाउस यूनिफॉर्म पहन के आए थे। एंड दीज आर द मैनेजमेंट कमेटी, जो हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है। आपको पता ही है कि हमारे स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE एंड विद्या भारती, इट्स अ पार्ट ऑफ विद्या भारती। तो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन के दिन पिछले साल भी मैंने आपको हरेला रिलेटेड क्लिप्स में दिखाया था कि बहुत अच्छे से ये हमारे स्कूल पे ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, नॉट ओनली फॉर 1 डे बट ऑल्सो थ्रू आउट द वीक। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू इसको हम मनाते हैं। आपको क्लिप्स के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे स्कूल पे जैसे 4 हाउसेस हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। तो ये 4 हाउस के जो बच्चे हैं तो ये सब बच्चे को हमने बताए थे
1 हफ्ते पहले ही इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आप लोग वन प्लांट लाएंगे, जो भी है, मे बी इट्स मेडिसिनल, मे बी इट्स फ्लावर, फ्रूट, वटेवर। तो बच्चे सब एक एक प्लांट लाए थे और कुछ प्लांट वैसे ही स्कूल के तरफ से ही यहाँ पे दिया गया था, जो हमारे अभी आप देख रहे हैं एकदम विद्यालय के सामने, जिसको प्लांटेशन किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट कमेटी के लोग आए थे कुछ, और उनके द्वारा ये कार्य किया गया। एंड यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे स्कूल के फ्रंट पोर्शन है। इससे पहले भी बहुत सारे क्लिप्स इसमें मैंने आपको दिखाया। पिछले साल हम बैकयार्ड पोर्शन में भी बहुत सारे प्लांटेशंस किए थे, बट इस बार बारिश बहुत होने के कारण हम वहाँ प्रोग्राम नहीं रखे थे। तो स्कूल के सामने ही जो कंपाउंड है और जो क्वार्टर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने प्लांटेशंस किए थे। देखिए हमारे स्कूल के सामने गार्डन है, एकदम जैसे मैंने आपको बोला कि आवर स्कूल इज़ कम्प्लीटली फोर्टिफाइड बाय द ग्रीनरी। तो ये तेजस्वी है, ये मेरी नीज़ है, और इस साल वो भी एडमिशन ली है उसी स्कूल पे। तो बाकी स्कूल के बाकी जो बच्चे हैं बाकी हाउसेस के, यहाँ पे देखिए टीचर्स के साथ अपने अपने एलोटेड टीचर्स के साथ वो प्लांटेशन पे बिज़ी है। ब्लू हाउस के टीचर मैं ही हूँ, बट यहाँ पे मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा बिज़ी रहा। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा प्लांट लाए थे, वो भी बहुत इधर उधर फ्रूट्स के प्लांट लाए थे, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको प्लांटेशन पे पार्ट लेके काम को किए थे। और यहाँ पे सर लोग आप देख रहे हैं, सर लोग भी पार्टिसिपेशंस यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि सब टीचर्स को डिफरेंट पार्ट पे एलोटेट किया गया था कि अपने अपने हाउस के बच्चों के साथ टीचर्स को रहना है। तो हमने लगभग 4 पीरियड तक ये प्लांटेशन जो प्रोग्राम है इसको हमने कंटिन्यू किए थे। फिर लंच के बाद जैसे हमारे बाकी भी क्लासेस होती है वैसे फिर शुरू हो गया था। तो 4 पीरियड तक हमने ये प्लांटेशन प्रोग्राम संपन्न किए थे। तो देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होके प्लांट्स लाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो है, दिस इज़ पूनम मैम। तो स्पेशली छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि 6, 7, 8 बड़े बच्चे भी होते हैं, गर्ल्स पे स्पेशली, बॉयज़ भी करते हैं, बट बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा इससे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं हमारा हमेशा एक्टिव रहते हैं वो। तो यहाँ पे ही वही बच्चों मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, दे आर द 12th साइंस क्लास। वो वहाँ से खिड़की से बुला रहे थे मुझे, तो दैट्स वही मैंने उनको भी जूम करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रूट्स का पेड़, जैसे कि मैंगो, गुआवा, लीची, तो ये सब पेड़ भी बच्चे लाए थे, लेमन। तो बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं इंटरेस्ट लेके, क्योंकि हमारे जो स्कूल है उसके कंपाउंड में बहुत स्पेस है, तो उस पर कितने भी पौधे लगाया जाए कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए प्लांटेशन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इस पे जो कुछ बच्चे हैं ये मेरी क्लास के हैं, 9th B के, और कुछ 10th क्लास के भी हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे घूम रहे, क्योंकि इनको पता है थोड़ा बहुत मैं व्लॉगिंग का काम करती हूँ, तो ये आ जाते हैं और फिर ऐसे बताते हैं। तो ये सब है बच्चे, ये सब हाँ मेरे ही क्लास के बच्चे हैं। तो कुछ वैसे तो प्लांटेशंस कर रहे, कुछ थोड़ा सा मज़े करते हैं, मतलब वैसे भी घूमते हैं, तो अब उनको क्लास में भेजा जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लांटेशन प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और जैसे कि एक दिन हमने प्लांटेशंस के लिए रखे थे, तो कंपटीशंस पे जो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, स्पीच कंपटीशन से हमने शुरुआत किए थे, हरेला वीक का सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद हमने प्लांटेशन रखे थे। प्लांटेशन के बाद देयर आर ऑल्सो 2 competitions left, and that is essay writing competition related to हरेला एंड ड्राइंग कंपटीशन। ऑब्वियसली इनका सबका थीम हरेला है, सेव इन्वायरमेंट है, इको ब्रिक है, प्लास्टिक फ्री स्कूल है। तो इस रिलेटेड टॉपिक बच्चों को दिया गया था, जिस पे वो प्रिपेयर करके आए थे, और वहाँ देन एंड देयर बैठ के वो बच्चों ने उस चीज़ को लिखा और ड्रॉ करा, जो भी करा। तो यहाँ पे अभी प्लांटेशन के एकदम ऑलमोस्ट एंड पे हम आके पहुँच गए, जहाँ पे बच्चे अभी पौधे में देखिए पानी डाल रहे हैं। ये सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं। जो बच्चे स्पेशली क्लास 12 के हैं, ये तो उनके लिए आखिरी साल है, तो वो भी इस पे इनिशिएटिव लेते हुए मैंने देखा कुछ बच्चों को। तो
देखिए यहाँ पे ये जैसे कि एक आम की जो पेड़ है उसको यहाँ पे गाड़ा जा रहा है। और यहाँ ये जो बच्चे हैं ये पहले मेरे पास पढ़ते थे, अभी फ़िलहाल ये 11th क्लास में चले गए हैं। और कुछ बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एरिया पे यहाँ पे घास जमे, क्योंकि ये मॉनसून का समय है तो इसलिए। बट स्टिल बच्चे को उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से उसको साफ़ करते हुए बहुत अच्छे से उसको संपन्न किए। तो आइए अब ट्री प्लांटेशन के जो नेक्स्ट डे है उस पे हमने किए थे ऐसे राइटिंग कंपटीशन। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशंस के लिए जैसे स्पीच कंपटीशन पे हमारा 3 जॉनरा था, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12। ऐसे राइटिंग कंपटीशन पे बच्चे उतना पार्ट नहीं लिए थे, संख्या कम रहने की दौरान हमने इस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, 6 to 8 एंड 9 to 12। तो बच्चे यहाँ पे राइटिंग घर से ही याद करके लाए थे, ऐसे नहीं कि घर से लिख के लाए हैं और सबमिट कर रहे हैं। तो दे एक्चुअली मेमोराइज्ड इट फ्रॉम देयर होम एंड नाउ दे आर राइटिंग इट और डिलीवरिंग इट थ्रू देयर राइटिंग। तो यहाँ पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन प्लांटेशन के नेक्स्ट डे हमने प्रिपेयर्ड किए थे। सब क्लास के जो इंटरेस्टेड बच्चे एनलिस्टेड यहाँ पे बैठे हैं और इनका देखभाल करने का चार्ज मेरे ही ऊपर था, तो इसीलिए मैं इसका छोटा सा क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए हरेला मीन्स हमको कंसर्न किया जा सकता है सो दैट वी कैन सेव द ट्रीज़। हमें पेड़ बचाओ, तो इस अभियान में हमको शामिल होना है और यही हरेला का जो मेन मोटो है। इनफैक्ट हमारी विद्या भारती में जो एनुअल सॉन्ग है उस पर भी एक लाइन ऐड है, पर्यावरण व्यवस्थित हो अब देना इस पर ध्यान है। हर साल विद्या भारती के सॉन्ग चेंज होते रहते हैं, तो इस पे पर्यावरण के ऊपर भी बहुत फोकस है, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर कंसर्न होके बच्चों को बताया जाता है, असेंबली में उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उसके बेस पे बच्चे इनिशिएटिव भी लेते हैं। हालांकि बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव लेना ये सब चीज़ कम होता है, बट फिर भी जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो हमेशा पार्ट लेते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम, चलिए आपको दिखाते हैं ड्राइंग कंपटीशन पे। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन पे राइटिंग है तो उस पर जितना बच्चे पार्ट लिए थे उससे डबल पार्टिसिपेशन हमने देखा कि ड्राइंग कंपटीशन पे मिला, क्योंकि बच्चे ड्राइंग पे ऐसा कोई होता ही नहीं है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बच्चे मैक्सिमम ड्राइंग पे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं। ड्राइंग के लिए हमारे स्कूल से 3 टॉपिक्स इनको प्रोवाइड किया गया था। नंबर 1 इको ब्रिक एंड फ्री प्लास्टिक स्कूल, दैट मीन्स प्लास्टिक आपको हटाना है स्कूल से उसी थीम पे। एंड नंबर 3 जो था वो है हमारा सेव एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन। तो अबाउट दिस 3 टॉपिक्स बच्चे अपना ड्राइंग का जो थीम वो बनाए थे और बहुत अच्छे से उसको अपने ड्राइंग के थ्रू उसको हमको दिखाए भी थे। तो ये ड्राइंग मैं स्टार्टिंग में आपको बनाने से दिखा रही हूँ कि दे आर एक्चुअली मेकिंग द ड्राइंग एट द पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद जब ये कलर धीरे धीरे आपको एविडेंट ये करते रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे बच्चे, मतलब ये प्रिपरेशन कितने अच्छे से ये करके लाए थे और उस चीज़ को हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियली बच्चे टैलेंटेड होते हैं ये सब चीज़ पे। स्पेशली कुछ बच्चे इतना अच्छा यूनिक थीम लेके लाए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंपटीशन। मैं आपको एक क्लिप्स में दिखाऊंगी, तो उस पर आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से अपना मन के जो भाव है उसको बच्चों ने एक्सप्रेस किया है अपना ड्राइंग के थ्रू। तो ये शुरुआत है और ये हरेला वीक में हम 2-3 टीचर जो इस पे इंक्लूडेड थे, तो उनमें से जो इस पे हमारा ड्राइंग और ऐसे राइटिंग पे ये मेरा ही चार्ज था, तो यहाँ पे इसीलिए मैं सुपरविज़न कर रही हूँ और जो क्लिप्सेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेमोरीज़ होता है, बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे या सीनियर क्लासेस में चले जाते हैं तो वो भी कभी अगर ये व्लॉग्स देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी एक समय इस चीज़ पे पार्टिसिपेशन लिए थे। दिस आर द मेमोरीज़, नथिंग एल्स। क्योंकि बहुत सारी चीज़ होता है जो हमें याद नहीं रहता है। जैसे हम
जब स्कूल टाइम पे हम पढ़ते थे तो हमारे समय ये सब कुछ नहीं था, बट नाउ देयर आर द सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तो इसको हम क्लिप्स में अगर रखेंगे, बाद में इसको देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नाउ दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कलरिंग। अब वो कलर करना शुरू किए हैं। कलर ड्राइंग का एक अलग ही मात्रा देते हैं। ड्राइंग पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, मैं ड्राइंग करना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए ये कलर्स मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चे जब स्पेशली ड्राइंग पे पार्ट लेते हैं तो वो चीज़ को मुझे देखना, कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए वाटर कलर, ऑयल पेस्टर, पेस्टल कलर, जो जैसे मतलब जिस कलर पे कंफर्टेबल है कलर का, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशंस हमने नहीं दिया था। तो बच्चे जिस कलर पे कंफर्टेबल है वही लाए थे और उसके थ्रू अपना अपना ड्राइंग कंप्लीट किए थे। तो ड्राइंग पे भी हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज रखे थे, 6 to 8 एंड 9 to 12। तो क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा थे, बड़े बच्चे 11-12 के बच्चे का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कमी था। 9th क्लास के बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। 10th क्लास में भी उतना नहीं थे बच्चे, क्योंकि 10th 12th तो बोर्ड के होते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ से अपने आप को दूर रखते हैं। तो व्हाटएवर, बहुत अच्छे से बच्चों ने अपना ड्राइंग को संपन्न किए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके ड्राइंग के थ्रू अगर आप थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करेंगे तो सो मेनी थीम्स आपको यहाँ नज़रों में आएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ देयर ड्राइंग। देखिए, जो सिलेक्टेड ड्राइंग्स जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सिलेक्शन किए थे, तो उनके ड्राइंग हमारे स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है उस पर हम हमेशा उसको विजुअलाइज करते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये सिलेक्टेड ड्राइंग्स है, इसके थ्रू अगर आप थोड़ा अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा थीम मिलेगा। तो बहुत इनिशिएटिव लेके बच्चों ने पार्ट लिए थे और हरेला वीक ऐसे ही हमने सेलिब्रेशन किए थे। आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।